Okay, the new topic, suppository, Unit 4. This will come in your mid-sem exam, Unit 3rd and Unit 4. We have discussed little about suppository when we are discussing about dosage form. That means basically it comes under semi-solid dosage form, but sometimes we can say it is a liquid dosage form, and it is inserted into body cavity like rectum, vagina, okay, or orifice of body cavity. That means opening of body cavity, and it is made by one important component that is called suppository base. Like in case of suspension, we have added one important part that is called suspending agent. Similarly, in case of emulsion, emulsifying agent, here we should add one suppository base. And the characteristics of suppository base, when you insert inside the body, it will start melting at body temperature. जो सपोजिटरी बेस है उसकी फीचर क्या है, जैसे बॉडी के अंदर आप इंसर्ट करोगे क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. इट्स प्रॉपर्टी, इट्स स्टार्ट मेल्टिंग एट बॉडी टेम्परेचर. सो व्हेन यू आर गोइंग टू formulate suppository, you should add at least one suppository base. And the characteristics of suppository base, when you insert inside the body, it will start melting. Okay, first see the definition. It is solid or semi-solid. It comes under both solid as well as semi-solid, but the most appropriate answer is semi-solid. When option is given solid, liquid, semi-solid and other example, you should tick the semi-solid. But when semi-solid is not in option, you should click on solid dosage form. Okay, it comes under both categories, solid as well as semi-solid. So as I said, these are solid or semi-solid dosage form meant for insertion into body cavity or orifice. Orifice means opening of body cavity like rectum, terminal portion of alimentary canal, vagina as well as urethra. Urethra means urinary tract. Okay, and they melt or dissolve at body temperature and show their both type of action, whether action is localized or systemic. Localized means particular area जहां पे आप insert कर रहे हो. Systemic means after administration it goes to blood circulation and then it will show their action. That is called systemic effect. Okay, again we can classify this into solid dosage form like tablet, capsule, powder. Again it is solid dosage form meant for insertion into body cavity where they melt or soften or release their medicament or medicine at body temperature and then they will show or produce their local or systemic effect. It can produce both type of effect, local as well as systemic effect. Local means a specific organ पे जहां पे भी आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर रेक्टम में इंसर्ट किया तो रेक्टम में इसकी इफेक्टेसी शो होगी, रेक्टम में इसका अफेक्ट होगा. Okay, as well as systemic effect. Again it comes under semi-solid dosage form because it is prepared by melting of all the ingredient. Why it is called semi-solid? Because all the ingredients are melted to form suppository. आपको क्या करना, सारे के सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको क्या करना, मेल्ट करना.
आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट, मेल्ट कैसे करते हैं, हीट प्रोवाइड करने के बाद। ओके, ऑल इंग्रेडिएंट्स मीन्स सपोजिटरी बेस along with additives and one API, active pharmaceutical ingredients. Okay, these are the definitions of suppository. Now as we know, every dosage form have some advantages as well as disadvantages. First comes to the advantages. First point, it avoid first pass effect. First pass, this is the important term. First pass means is it bypass first pass metabolism. First pass metabolism क्या होता है मैं समझा रहा हूं. After taking any medicine orally, it goes to GIT, stomach, then intestine, liver. In liver there is a chance of degradation, there is a chance of metabolism. That means conversion of active to inactive form. आपने मेडिसिन लिया, बॉडी के अंदर गया, लीवर में क्या कुछ इंजाइम है, वो इंजाइम क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, ब्रेक डाउन करेगा. जैसे डिग्रेड होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी. पहले एक्टिव था, वो अब इनएक्टिव हो गया. So the metabolism which occurs inside the intestine or liver, this is called first pass metabolism, or it is also known as pre-systemic metabolism. Pre means before, systemic means blood circulation. Blood circulation में जाने से पहले उसका क्या हो गया, metabolism, degradation, breakdown. That is called pre-systemic metabolism or first pass metabolism or first pass effect. Okay, so in case of suppository, we are not going to take orally. हम orally नहीं ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स वी बाईपास ओरल. ओरल को क्या कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं. जब ओरली जाएगा ही नहीं तो ये लीवर में नहीं जाएगा. इट विल नॉट गो टू लीवर और इंटेस्टाइन, जहां पे क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म होता है. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सपोजिटरी, इट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसे ये बाईपास करेगा या अवॉइड करेगा. जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. लीवर में ये जाएगा ही नहीं, हम तो इसको दे रहे हैं रेक्टम में, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, राइट. सो वहां पे क्या होगा, ये चीजें नहीं होनी है. फर्स्ट एडवांटेज. सेकंड एडवांटेज, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर. व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री C. When you insert inside the body cavity, it will start melting, and after melting, it will release the medicament or API. Okay. Third point, it gives both type of effect, localized or systemic effect. Fourth, it can be given to unconscious patient. जो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है उसको आप ओरली नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सपोजिटरी ओरली तो देना नहीं है, बॉडी कैविटी के थ्रू जाता. तो अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं भी है फिर भी आप उसके बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट. इट इज इजी टू यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ पेशेंट, चाइल्ड पेशेंट और ओल्ड एज पेशेंट. चाइल्ड मीन्स पेडियाट्रिक, ओल्ड एज मीन्स geriatric patient. Okay, it is useful to produce local effect, जो थर्ड नंबर पे है. यूजफुल फॉर रैपिड और डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम. अगर रेक्टम में कोई इंफेक्शन हो गया और आपने सपोजिटरी रेक्टम में ही डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया तो ये क्या होगा, रैपिड इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट. It is useful to promote evacuation of bowel, especially constipation में, removal of bowel.
इसी को बोलते हैं इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल कॉन्स्टिपेशन में। कन्वेनियंट फॉर दोज ड्रग विच काउज जीआईटी इरिटेशन, जो मेडिसिन जीआईटी में इरिटेशन काउज कर रहा उस मेडिसिन को आप सपोजिटरी बना करके दे सकते हैं, क्योंकि सपोजिटरी जब आप बनाएंगे तो वो जीआईटी में जाएगा ही नहीं। ओके, तो इट इज यूजफुल फॉर दोज ड्रग विच काउज इरिटेशन इन जीआईटी स्टोमक, और जब भी जीआईटी में इरिटेशन होगा, साइड इफेक्ट होगा, तो फर्स्ट सिम्टम आपका दिखेगा डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया। नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ओके, so these are the advantages of suppository. Now the disadvantages of suppository. इरिटेशन वहां पे भी आया था, लेकिन वहां पे इरिटेशन कहां पे था? जीआईटी में। और अगर रेक्टम में इरिटेशन काउज कर रहा, then you cannot administered with the help of suppository. So here it is mentioned, irritant drug cannot be administered if it causes irritation in rectum, vagina और urethra. ओके, अगर जीआईटी में इरिटेशन काउज हो रहा, उस कंडीशन में आप इसको सपोजिटरी बना करके दे सकते हैं, लेकिन जहां पे फॉर एग्जांपल रेक्टम में अगर वो इरिटेशन काउज कर रहा, उस कंडीशन में आप सपोजिटरी नहीं दे सकते। नीड टू स्टोर लो टेम्परेचर, व्हाई? बिकॉज एट बॉडी टेम्परेचर इट स्टार्ट मेल्टिंग। तो लो टेम्परेचर चाहिए, कितनी टेम्परेचर? 10 to 20। और ये कहां पे मिलेगा? इनसाइड द फ्रीज। अगर आप यहां पे ऐसे छोड़ देंगे, टेम्परेचर 37 अगर हो गया, ये क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है? इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करना, और लो टेम्परेचर के लिए आपको क्या चाहिए? फ्रीज चाहिए। तो कैन नॉट बी इजीली प्रिपेयर्ड। सपोजिटरी अभी आप लोग बनाएंगे, शायद किसी ने बनाया, अभी बना दिया एक बैच, ये सभी ने? सबने बनाया। ओके, सो आपने यूज किया होगा मोल्ड, मोल्ड है ना? ओके, so it cannot be easily prepared. It needs some amount of suppository base along with mold. मोल्ड क्या होता है? एक कंटेनर है जिसके अंदर आप लिक्विड को डालते हैं, और वो जब सॉलिडिफाई होता है तो एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। किस शेप का बनता है? जिस शेप का आपका मोल्ड हो या डाई हो, राइट? इट इज कॉस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो आपका सपोजिटरी बेस है इट इज हाईली कॉस्ट, और आपको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? फ्रीज, उसकी भी कॉस्ट आती है। तो जो फॉर्मुलेशन है क्या? कॉस्ट एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द रेक्टम इज मच लेस देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मे इफेक्ट डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन रेट से हमें यह पता चलता है कि कितने टाइम पे कितनी ड्रग रिलीज कर रही है बॉडी के अंदर। डिसोल्यूशन रेट पहले यूज फॉर कैलकुलेट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट विल रिलीज आफ्टर हाउ मच टाइम। ओके, सो डिसोल्यूशन रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड। जैसे टैबलेट है, टैबलेट स्टोमक में गया, वहां पे क्या मिला? फ्लूइड मिला, गैस्ट्रिक फ्लूइड। उसके कांटेक्ट में आया, ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ। जब ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ड्रग वहां से टूटना शुरू हुआ, रिलीज होना शुरू हुआ। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। जो रेक्टम के अंदर फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू इंटेस्टाइन, तो डिसोल्यूशन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इट इज मेंशन फ्लूइड कंटेंट और the quantity of fluid in rectum is small as compared to intestine. That is why dissolution rate is less as compared to intestine. Okay, some drug may be degraded by microbial flora. Microbial flora means microorganism. It may be bacteria, virus, fungi. Okay, so there are some drug which break down due to presence of bacteria, virus in
रेक्टम। रेक्टम के अंदर आपने जैसे ही डाला, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। उससे क्या होगा, जो ड्रग की जो एफिकेसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंटेस्टाइन या लीवर में जो बैक्टीरिया वो क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है, या हाइड्रोलिसिस या ब्रेक डाउन, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सेम अगर रेक्टम के अंदर कोई बैक्टीरिया वो अगर डिग्रेड कर रही है, हाइड्रोलिसिस कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, उस वजह से उसकी इफिकेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरी। नाउ द टाइप्स ऑफ सपोजिटरी, इट इज मेंशन इन योर सिलेबस। These 5 types of suppositories are mentioned in your syllabus. First suppository is called rectal. The name itself indicates it is used for rectum. Second is called vaginal. It is used for vagina. The other name of vaginal suppository is called pessaries. And the question already came in examination. Pessaries, also known as rectum, vaginal, urethra, all. It is also known as vaginal suppository. Then urethral suppository, also known as bogies. Then nasal suppository, also known as boginaria. And the last, ear cone for ear. Again, it is also known as urinaria. One question always come as MCQ from this slide. एक क्वेश्चन हमेशा आता। Now these are the new concept of suppository. It may be tablet suppository, layered suppository, coated suppository and capsule suppository. ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। Coming one by one, first is called rectal. It is used for rectum and it is inserted or administered inside the rectum. Weight of suppository in children is about 1 gram and in adult is 2 gram. Okay, 1 and 2. Children 1 gram, adult 2 gram. The shape which is important of rectum suppository is torpedo. Torpedo means it's like a missile. Conical shape, हाँ बिल्कुल, torpedo. And the length is about 3 centimeter. Shape may be asked, shape कैसा होता है rectum suppository का, torpedo shape. Okay. Second is called vaginal suppository. Shape is oviform. Oviform means egg shaped. Egg. Weight is about 3 to 5 gram and it is mainly used for the female purpose. Infection of female genitourinary tract. That means the tract which is responsible for both purpose, genital purpose as well as urinary purpose. And also it is used for contraception, birth control, mainly in case of female. It contains combination of polyethylene glycol of different molecular weight as a suppository base. Polyethylene glycol, it is the example of suppository base. Next is called urethra, which is inserted inside the urethra and the size is about 60 to 75 millimeter. Okay, weight is almost 2 gram and in case of
it is for female, and in case of male, weight is about 4 gram and size is 100 to 150 millimeter long. Okay, and the shape is pencil shape. Pencil shape for urethra, oviform shape for vaginal, and torpedo shape for rectum. Last two is called nasal and ear cone. Sometimes it is used for nasal administration, and here it weight is about 1 gram, and in this case glycerogelatin is used as a suppository base. Next is called ear cone, also known as urinaries, and these are used for insertion into ear. It is cylindrical shape. Weight is about 1 to 2 gram. देखो 1 to 2 ग्राम ऑलमोस्ट सभी में है वेट. चेंज क्या, शेप और साइज along with name. These are the different shapes of suppository. एक सपोजिटरी आपने ऑलरेडी बनाया हुआ, उसका शेप आपको पता होनी चाहिए किस शेप का आपने बनाया था. These are not mentioned in your syllabus. Now the important part of suppository is called suppository base. As I said, it's an important part of any suppository because first it maintains the shape of suppository along with solidity or firmness, hardness, strength, and also play when insert inside the body it start melting. क्या क्या है इसके functions? First function, maintain the shape, then firmness या strength, and also it start melting when inserted inside the body cavity. Okay, there are large number of suppository base available inside the market and which can be classified into different category. Out of these, theobromine, glycerogelatin base, and polyethylene glycol, these three are most important and most commonly used suppository base. कौन कौन से? theobromine, glycerogelatin and polyethylene glycol. So first, the functions of suppository base: first it maintain the shape, second it maintain the firmness. Firmness means hardness या strength during the administration, and third to give suppository a melting point which is equal to body temperature, that means 37 degrees C. When you insert suppository inside the body, it will start melting at body temperature. So these are the three functions of any suppository base. First, to maintain shape, second, strength, then start melting. As we have discussed so many times, ideal properties of different surfactant, different suspending agent, emulsifying agent. Similarly, in case of suppository, we can take one example of suppository base, and what should be the ideal properties of suppository base. तो ये आपको रटी हुई चीज होनी चाहिए. It should be non-toxic, non-irritant, non-sensitizing. It should be inert. But in case of base, because it possesses three main functions: shape, firmness, and melting point, you should mention ideal properties. First, maintain the shape and size. Second, it should melt at body temperature. Should be inert, non-irritant, should shrink sufficiently to remove from mold. जैसे आप मोल्ड से या डाई से निकालोगे, ये थोड़ा सा श्रिंक होनी चाहिए. अगर श्रिंक नहीं होगा तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा. बहुत ज्यादा टाइट है, आप निकालने की कोशिश करो
वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या होगा, श्रिंक होनी चाहिए। इट शुड रिलीज मेडिकामेंट इजीली एंड रीडीली। इसके अंदर जो भी आपने मेडिसिन लिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेक्टम के लिए यूज किया, कोई इंफेक्शन हो गया, वो मेडिसिन जैसे रेक्टम में गया रिलीज होनी चाहिए। अगर रिलीज नहीं हो रही है तो कोई फायदा नहीं है। आपने ऐसा सपोजिटरी बना दिया, ड्रग उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, बॉडी के अंदर जैसे इंसर्ट किया वो रिलीज हो ही नहीं रहा, तो जो एक्शन है वो तो दिखेगा नहीं। तो इट शुड रिलीज मेडिकामेंट इजीली एंड readily. It should permit incorporation of drug. जब आप बना रहे हो उसके अंदर जैसे एपीआई डाला, ये आसानी से इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। It should be compatible with varieties of drug. डिफरेंट कैटेगरी के अगर आपने मेडिसिन यूज करना है उसके साथ क्या होनी चाहिए, कंपेटेबल होनी चाहिए। It should be physically stable on storage. Stability should be there. That means आपने स्टोर किया हुआ फ्रीज में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आपने आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ देखा उसके अंदर कुछ डिग्रेडेशन हो गया, कुछ ब्रेक डाउन हो गया, दैट मीन्स सपोजिटरी इज नॉट फिजिकली स्टेबल। तो इट शुड बी फिजिकली स्टेबल। एंड लास्ट, इट शुड नॉट बी सॉफ्टन और हार्डन ऑन स्टोरेज। जिस भी कंडीशन में आपने बनाया हुआ है, जो भी उसकी फर्मनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है, वही मेंटेन होनी चाहिए। फ्रीज में रखने के बाद हो सकता है कि कूलिंग टेम्परेचर की वजह से वो हार्ड हो जाए, नॉर्मली हो जाती है ना। आप कोई चीजें रखो उसको लिक्विड के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, बर्फ में, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, और सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सपोजिटरी बेस। Types of suppository base, it may be oily base or water soluble. The name itself indicate oily means the suppository base should be dissolved in oil. Water soluble, that means it should be solubilized in water. Emulsifying, emulsion जो आपने पढ़ाया, इमल्शन में क्या होता है, दो लिक्विड होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इमल्सिफिकेशन। दोनों लिक्विड आपस में चिपक के साथ में रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। ऑयली बेस में भी बहुत सारी कैटेगरी है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, कुछ मैं एग्जांपल बता दूं। थियोब्रोमाइल, water soluble example, glycerogelatin. Glycerogelatin, it is the combination of 3 parts: glycerol, water and gelatin, and its feature or properties are it's a colorless, transparent, sometimes translucent in nature. ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा डिफरेंस है। एक लाइट को पास करने में इजीली पास करते हैं और एक पार्शियली पास करते हैं। इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। Method of preparation, it is mentioned in your syllabus. We have 3 method of preparation: hand rolling, fusion method means melting, cold compression method. Compression is always used for tablet preparation. Compression, प्रेशर अप्लाई किया, पाउडर को कन्वर्ट किया, प्रेशर से टेबलेट के फॉर्म में इजेक्ट हो गया। Okay, so first is called hand rolling method. It's the simplest and oldest method. Simplest and oldest. Okay, here we can avoid use of heat. Heat की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे क्या पड़ती है आपको? हैंड पाम। Okay, it is mentioned it has the advantage of avoiding necessity of heating the cocoa butter.
कोका बटर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सपोजिटरी बेस। यहां पे क्या है, जो हीटिंग है उसको आप क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ हैंड। सो फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक टाइप ऑफ मास is prepared by trituration. Trituration means by using mortar and pestle. Plastic type of mass is prepared by the use of trituration. Trituration of cocoa butter and active ingredient. cocoa butter क्या है यहाँ पे, suppository base और साथ में active ingredient in a mortar. ठीक है। After preparation of plastic type of mass, the mass is formed into ball. Ball देखा? With the help of hand or palm of hand. जो प्लास्टिक टाइप के आपके मास हो गए, उसको हैंड से आप उसको बॉल में कन्वर्ट कर दो। Okay? After that, it is rolled into uniform cylinder with a large spatula or a small flat और पिल टाइल। पिल टाइल मीन्स जो ऑइंटमेंट स्लैब बताया था, स्क्वायर शेप का, एक गिलास शेप का होता है, उसके पास हम पाउडर फॉर्म में रखते हैं, उसको मिक्सिंग करते हैं। सेम है यहाँ पे पिल टाइल। प्लास्टिक टाइप का आपके पास मास है, आपने यूज किया हुआ है हाथ से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बॉल शेप में। उसके बाद जब आप इसको बॉल शेप में ऐसे ऐसे करेंगे किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। And then the cylinder is cut into different pieces. सिलेंड्रिकल शेप हो गया, उसको आप यहां पे रखो और स्मॉल पीस में कट कर दो। ओके, cylindrical shape is cut into small pieces and then rolled into one end to produce conical shape. जैसे आप करोगे, स्मॉल पीस में कट कर दिया, एक साइड आपने क्या कर दिया, कोनिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन इट फॉर्म्स अ सपोजिटरी। हियर वी रिक्वायर कंसिडरेबल प्रैक्टिस एंड स्किल। आपको कैसे बनानी है उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्लास्टिक मास आपने कन्वर्ट किया मोटर प्रेशर से, उसको आपने कन्वर्ट किया बॉल में, फिर बॉल को आपने हाथ के मदद से सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया, उसको आपने पिल टाइल पे रखा, स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर दिया और एक साइड आपका कोनिकल शेप है। यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ये क्या आपका मोटर पेसल, इसमें क्या आपका सपोजिटरी बेस प्लस एपीआई। बाय द यूज ऑफ मोटर एंड पेसल वी कैन कन्वर्ट इनटू प्लास्टिक टाइप ऑफ मास। देन यही आपका पिल टाइल, दिस इज कॉल्ड पिल टाइल। ओके, then it can be converted into ball shape and after using hand palm you can convert into cylindrical shape। और उसके बाद आप उसको स्मॉल पीस में कट कर दो। एक पीस आपका क्या है, वो सपोजिटरी है। मेथड इज मेंशन इन दिस स्लाइड अगेन। Here it is mentioned lubricant is applied। lubricant का क्या मतलब होता है, जो फ्रिक्शन को फ्री कर दे, स्मूथ, जो सरफेस है स्लिपरी हो जाए ताकि उसमें चिपके नहीं, वरना अगर चिपक गया मोटर के अंदर तो कुछ पार्ट उसी में रह जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट। सेम चीजें हैं, बस स्टेप वाइज में यहां लिखी हुई है। सेकंड मेथड इज कॉल्ड फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट। मेल्टिंग द सपोजिटरी बेस। अगर सपोजिटरी बेस सॉलिड है, इसको मेल्ट करोगे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड को अगर आप मेल्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में। देन डिस्पर्स और डिसॉल्व द ड्रग इन मेल्टेड बेस।
जो बेस है वो आपकी फॉर्म में लिक्विड में, उसके अंदर आप ड्रग को या तो डिसॉल्व कर दो या डिस्पर्स कर दो। डिस्पर्सन कहां पे आएगा? सस्पेंशन में। डिसॉल्व सॉल्यूशन, अगर डिसॉल्व हो गया तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन, और डिस्पेंस हो गया तो डिस्पर्स हो गया तो बन गया ये आपका सस्पेंशन। दैट मीन्स इफ द ड्रग इज solubilized in melted base it form solution. If the drug is not solubilized it will disperse in base and form suppository. ड्रग या तो बेस के अंदर solubilize हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो उसको बोलेंगे dissolve, नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे disperse. Then the mixture is removed from the heat and poured into mold. जो मिक्सचर है उसको हमने क्या किया? हीट से हटाया, कहां डाल दिया उसको? मोल्ड में। किस फॉर्म में? ये लिक्विड फॉर्म में। ओके, जैसे लिक्विड फॉर्म में आपने उसको मोल्ड के अंदर डाला, अब आप इसको क्या करोगे? कूल करोगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्जील, solidify. After pouring the mixture into mold, it should be congealed. That means it will be converted into solid form. पहले भी solid form में था बेस, आपने उसको क्या किया? मेल्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसके अंदर एपीआई डाला, ड्रग या तो डिसॉल्व हो गया या डिसॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद इस मिक्सचर को आपने मोल्ड के अंदर डाला और वापस से आपने क्या किया? सॉलिडिफाई। That is called congeal, and it can be converted into again solid form. Then remove suppository from mold. अब वहां से आपको क्या करना है? मोल्ड से क्या करना? सपोजिटरी को निकालनी है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सपोजिटरी बेस प्लस एपीआई। जरूरत पड़ेगी तो हम लुब्रिकेंट भी ऐड करेंगे, क्योंकि मोल्ड से निकालते हुए वो जो आपका कंटेनर का वो जो वॉल है वो स्मूथ होनी चाहिए, स्लिपरी, ताकि वो इजीली वहां से रिमूव हो जाए। द फ्यूजन मेथड कैन बी यूज्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ सपोजिटरी। ऑल टाइप्स मींस whether it is urethral, vaginal, rectum, ear, nose, 5 टाइप्स। फ्यूजन मेथड से हम किसी भी टाइप के सपोजिटरी को बना सकते हैं। इन केस ऑफ ए स्मॉल स्केल मोल्ड, जो आपने लैब में देखा या परफॉर्म किया, इन दैट केस यू कैन प्रिपेयर 6 to 12 सपोजिटरी एट वन टाइम। आपके पास शायद 6 वाले थे ना? 6 वाले थे। तो जो लैब में परफॉर्म करते हैं उसमें आप एट ए टाइम या तो 6 या 12 सपोजिटरी बना सकते हैं। बट ऑन अ इंडस्ट्री स्केल और लार्ज स्केल you can formulate suppository more than 100 in single molding, single operation. एक बार में आपको कितने? more than 100 सपोजिटरी बन सकते हैं। इसका मतलब उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन मेथड। सेम चीज इज मेंशन इन दिस स्लाइड। ये वाला था, आपने देखा था, इसमें कितने हैं? 6, और इसमें 12, 6 और 12। ये प्लास्टिक मोल्ड है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या गया। मोल्ड के अंदर आपने लिक्विड प्रिपरेशन डाला और लिक्विड को आपने कैसे कन्वर्ट किया? जो बेस है उसको पहले आपने मेल्ट किया, उसके अंदर ड्रग को डिसॉल्व किया या डिस्पर्स किया, उस मिक्सचर को आपने मोल्ड के अंदर डाला। मोल्ड के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर में, उसको आपने क्या कर दिया? कट कर दिया, है ना? एक्स्ट्रा पार्ट अगर जो मोल्ड के ऊपर अगर आ गया तो उसको आपने क्या किया? कट कर दिया। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद आपने उसको वहां से रिमूव किया। जो सपोजिटरी है वो उसी शेप का होगा जिस शेप का आपका मोल्ड है। बिस्किट जब बनते हैं ना, बिस्किट के भी अलग अलग शेप होते हैं, क्योंकि जिस मोल्ड में हम बिस्किट बनाते हैं वो उसी शेप का होता है जिस शेप का बिस्किट बन जाता है। तो सेम है अगर सपोजिटरी में भी।
Last method is called cold compression method. Compression means after applying pressure. Okay, and here it is a method of suppository from a mixed mass in case of suppository base and medicament. Mixed mass means mix of suppository base plus medicament, and then it can be compressed by applying force or pressure by using machine. And here the friction of process causing the base is to soften into paste like consistency. जो आपका मशीन है उसके अंदर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने अगर कुछ मशीन देखा होगा जहां पे एक साइड में हम कंपोनेंट को डालते हैं, दूसरे साइड से प्रोडक्ट रिलीज होता है। इस तरह का अगर आपने कोई भी मशीन देखा होगा, है ना, आटे मशीन में देखा होगा, आटे वाले मशीन में देखा होगा, एक साइड से आपने क्या किया, इंग्रेडिएंट को इंपोज किया, दूसरे साइड से प्रोडक्ट रिलीज होना शुरू हो गया। सेम मशीन यहां पे भी है, बस जो सॉफ्ट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन जब होगा तो उसमें क्या होगा, एक तरह का हीट प्रोवाइड होगा, उसके वजह से जो बेस है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। Here, small scale में you can use mortar and pestle, and large scale you can use kneading mixer. Kneading means combining. जैसे मिक्सर होता है ना, मिक्सर, उसमें क्या करते हैं, सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड kneading. And here, suppository mass is placed into a cylinder which is then closed. Pressure is applied from one end to release the mass from the other end. एक साइड से आपने प्रेशर अप्लाई किया और उस प्रेशर की वजह से प्रोडक्ट दूसरे साइड में निकलना शुरू हो गया। In this method, when the die is filled with the mass, a movable end plate at the back of die is removed, and when additional pressure is applied to the mass in the cylinder, the formed suppositories are released or ejected. ठीक है, the end plate is returned and the process is continued until all the suppository mass is formed. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक के सारे सपोजिटरी बन नहीं जाए। एक साइड से हम जितने भी इंग्रेडिएंट है उसके मिक्सचर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर की वजह से फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। दूसरे साइड से जो हमारा सपोजिटरी है वो रिलीज होना शुरू हो गया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक के सारे सपोजिटरी बन नहीं जाए। So these are the three types of method of preparation of suppository. किसी को कोई डाउट है? Write the question.